जय भीम दोस्तों। जय भीम दोस्तों। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ूंगी संविधान का अनुच्छेद 301 यानी भाग 13, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। भारत के राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। भाग 13 बात करता है भारत के राज्य के क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में। पार्ट 13 कॉन्स्टिट्यूशंस, पार्ट 13 ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो चलें स्टार्ट करें। 301 Constitution's article says about freedom of trade, commerce and intercourse. 301 article says about freedom of trade, commerce and intercourse, subject to the other provisions of this part. Trade, commerce and intercourse throughout the territory of India shall be free. 301 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स के बारे में। सब्जेक्ट टू दी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शेल बी फ्री। 302 article says about power of parliament to impose restrictions on trade, commerce and intercourse. 302 article says power of parliament to impose restrictions on trade, commerce and intercourse के बारे में। Parliament may by law impose such restrictions on the freedom of trade, commerce or intercourse between one state and another or within any part of the territory of trade, commerce or intercourse between one state and another or within any part of the territory of India as may be required in the public interest. 302 article says about power of parliament to impose restrictions on trade, commerce and intercourse. Parliament may by law impose such restrictions on the freedom of trade, commerce or intercourse between one state and another or within any part of the territory of India as may be required in public interest. 303 article says about restrictions on the legislative powers of the union and of the states. 303 article says about restrictions on the legislative powers of union and of the states with regard to trade and commerce. Number 1, notwithstanding anything article 302, neither parliament nor the legislature of a state shall have power to make any law giving or authorizing the giving of any preference to one state over another
making or authorizing the making of any discrimination between one state and another by virtue of any entry relating to trade and commerce in any of the lists in the 7th schedule. Number 2, nothing in clause first shall prevent Parliament from making any law giving or authorizing the giving of any preference or making or authorizing the making of any discrimination if it is declared by such law that it is necessary to do so for the purpose of dealing with the situation arising from scarcity of goods in any part of the territory of India. अब मैं इन तीनों अनुच्छेद को हिंदी में पढ़ लेती हूँ क्या कहा जा रहा है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम की बात करता है संविधान का भाग 13। संविधान का अनुच्छेद 301 कहता है या अनुच्छेद 301 वर्णन करता है व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता के बारे में। इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार वाणिज्य और समागम आबाद होगा। क्या कहा जा रहा है कि भारत के भारत की जो टेरिटरी है उसके अंदर व्यापार करना वाणिज्य करना इसकी स्वतंत्रता सभी नागरिकों को होगी आबाद रूप से, कोई उसमें रोक टोक नहीं है। इसी तरह से 302 अनुच्छेद बताता है व्यापार वाणिज्य समागम पर निर्वर्धन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति। 302 अनुच्छेद साथ ही साथ एक तरफ तो 301 अनुच्छेद फ्रीडम देता है सभी नागरिकों को, सभी ट्रेडर्स को व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता की, दूसरी तरफ उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए संसद की शक्ति के बारे में बात की जा रही है कि संसद की शक्ति ही है जिसके तहत यानी व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन आरोपित कर सकेगी। ये शक्ति किसके पास है? संसद के पास। संसद क्या करेगी जब कोई ऐसी स्थिति आती है ताकि व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन आरोपित किया जाए, तब क्या करेगी संसद? विधि द्वारा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग के भीतर व्यापार वाणिज्य या समागम की स्वतंत्रता पर ऐसे निर्बंधन अधिरोपित कर सकेगी जो लोकहित में अपेक्षित हों। अनुच्छेद 303 कहता है व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन। क्या कहा जा रहा है? अनुच्छेद 303 में कहा गया है व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन। नंबर 1, अनुच्छेद 302 में किसी बात के होते हुए भी 7वीं अनुसूची की सूचियों में से किसी भी व्यापार और वाणिज्य संबंधी किसी प्रविष्टि के आधार पर संसद या राज्य के विधानमंडल को कोई ऐसी विधि बनाने की शक्ति नहीं होगी जो एक राज्य को दूसरे राज्य से अधिमान देती है या दिया जाना प्राधिकृत करती है अथवा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच कोई मतभेद करती है या किया जाना प्राधिकृत करती है। नंबर 2, खंड 1 की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से नहीं रोकेगी जो कोई ऐसा अधिमान देती है या दिया जाना प्राधिकृत करती है अथवा कोई ऐसा विभेद करती है या किया जाना प्राधिकृत करती है यदि ऐसी विधि द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी
भाग में माल की कमी से उत्पन्न किसी स्थिति से निपटने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है। तो क्या कहा जा रहा है कि ऐसी कोई बात संसद को ऐसी विधि बनाने से नहीं रोकेगी, यानी यहाँ पर जो संसद है वही ताकतवर है, उसके वो ज़्यादा शक्तिशाली है, इसीलिए वो ऐसी विधि बनाने से नहीं उसको रोका जा सकता है जो कोई ऐसा अधिमान देती है या दिया जाना प्राधिकृत करती है अथवा कोई ऐसा विभेद करती है या किया जाना प्राधिकृत करती है। यदि ऐसी विधि द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में माल की कमी से उत्पन्न स्थिति से निपटने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है। समझ में आया कुछ दोस्तों? चलिए, आएगा जब सुनोगे या खुद किताब लेके पढ़ोगे, संविधान की पुस्तक लेकर जब पढ़ोगे तब समझ में तो आएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल पढ़ूंगी अनुच्छेद 304, अनुच्छेद 305। तो अभी के लिए इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट एंड शेयर प्लीज़। थैंक यू। जय भीम।